Whenever we are thinking of studying abroad, जो 3-4 कॉलेजेस के नाम ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट में टॉप पर होते हैं आर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड अ फ्यू मोर. बट कभी हमने इस बारे में सोचा है कि व्हाई सो? आई मीन, व्हाई वुड इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टडी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी over all the amazing options in India? Isn't it more convenient for Indian students to study in their home country? Then why dream of Oxford? Especially अगर acceptance rate 16% है. Definitely a tough nut to crack. And अगर हम recent trends को study करें, तो Oxford University में ज़्यादातर applications Indian and Chinese students send करते हैं. The reason behind this euphoria is simple. Students अपने time, मनी एंड रिसोर्सेज को बहुत वैल्यू करते हैं और सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं which are worth their time and resources. Oxford University is one of the best universities ever. World University Rankings 2025 में Oxford University ने consecutively 9 times अपनी first position को retain किया है among tens and thousands of universities. Not an easy job for sure. But obviously, this is not the sole reason. As students, हम बहुत सारे successful and enterprising human beings को idealize करते हैं and we follow them religiously क्योंकि हम उनके ही जैसा बनना चाहते हैं. Do you know कि कितने successful Indians have studied from Oxford University? So many. For example, the likes of Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar, Ratan Tata, Indira Gandhi, S. Radhakrishnan, Rajiv Gandhi, Vikram Sarabhai, Shashi Tharoor have completed their masters or bachelors from Oxford University. I am sure इनमें से कोई ना कोई आपके inspiration या idol जरूर होंगे. So now coming to the point, how to get admission in Oxford University. But before that, let's tell you कि आपके पास stream wise कितने course options available हैं to apply for Oxford University. अगर हम undergraduate courses की बात करें, तो in humanities stream there is no dearth of options like archaeology and anthropology, classics, ancient and modern, English language and literature, history, history of art, modern languages, example French, German, Italian, Spanish, philosophy, politics and economics, theology and religion, linguistics and music. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस की कैटेगरी में स्टूडेंट्स के लिए काफी स्पेशलाइजेशंस हैं लाइक एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, ह्यूमन साइंसेस, लॉ, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइकोलॉजी. अगर हम साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में देखें तो स्टूडेंट्स कैन चेक आउट दीज ऑप्शन: बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, computer science, engineering science, example civil, electrical, mechanical, environmental science, mathematics and computer science, material science, medicine, physics and statistics. However, अगर आपके varied interests हैं, तो there are also undergraduate courses in interdisciplinary fields like biological and biomedical sciences, environmental change and management, philosophy, politics and economics, humanities and social sciences. Now, Oxford University के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को स्ट्रीम वाइज चेकआउट करते हैं. ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में देखें तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज में: एंशिएंट हिस्ट्री, क्लासिकल आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, थियोलॉजी, मॉडर्न लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, linguistics, medieval studies, philosophy, politics and economics. वहीं social sciences के कैटेगरी में स्टूडेंट्स के लिए कोर्स ऑप्शंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है, such as economics, law, politics and international relations, public policy, psychology and social work. साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज में अप्लाई कर सकते हैं which are classified under science, engineering and medicine, biomedical sciences, computer science, engineering science, environmental science, material science, mathematics, medical sciences, neuroscience, physics, psychology and brain sciences, and statistics and data science. Interdisciplinary courses में students can think of these options: environmental change and management, humanities and social sciences, development studies,
social policy, and global governance and diplomacy. Now, let's understand कि what are the admission requirements for international students at Oxford University. But before that, we must know कि Oxford University में सिर्फ CBSE या ICSE से 12th क्लियर किए हुए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड NIOS ईयर 12th क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडियन स्टूडेंट के एप्लीकेशंस को 3 बोर्ड डिविजन्स में एक्सेप्ट करती है। द फर्स्ट वन इज फॉर कोर्सेज रिक्वायरिंग AAA। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स को अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज में अप्लाई करना है तो उनके 4 सब्जेक्ट में ग्रेड्स A1 होने चाहिए एंड 5th सब्जेक्ट में ग्रेड A2 होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई करने का सोच रहे हो, आपके उस कोर्स के अकॉर्डिंग किसी 4 रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपके ग्रेड्स A1 होने चाहिए। सो यहाँ आपकी थोड़ी रिसर्च लगेगी जो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाकर अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो। ICSE स्टूडेंट्स के केस में द ओवरऑल परसेंटेज शुड बी 90%, जिसमें अपने कोर्स सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपके 4 रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इज 95% और अबव, एंड 5th सब्जेक्ट में 85% एंड अबव का स्कोर होना चाहिए। चलिए अब कुछ कोर्सेज के नाम जानते हैं जिनमें आपको इन पैरामीटर्स को फुलफिल करना होगा। मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड लॉ। दूसरी कैटेगरी है फॉर कोर्सेज रिक्वायरिंग AAA। इस कैटेगरी में CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स शुड हैव अ स्कोर कार्ड ऑफ A1 ग्रेड्स इन 3 सब्जेक्ट्स कंपल्सरीली उस सब्जेक्ट में जिसमें वो अंडरग्रेजुएट कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हैं, एंड बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में दे शुड हैव एन A2 ग्रेड। ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स आर सपोज्ड टू हैव मिनिमम परसेंटेज ऑफ 90% और मोर, जिसमें उनके 3 सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 95% और अबव स्कोर्स होने चाहिए कंपल्सरीली इन द सब्जेक्ट जिसमें वो स्पेशलाइजेशन करने का सोच रहे हो, एंड मिनिमम 85% और अबव बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द सब्जेक्ट्स जिसमें आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की जरूरत है। आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, हिस्ट्री, politics and international relations, and psychology. Third category is for courses requiring AAA. CBSE students जिनके सब्जेक्ट्स इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनका स्कोर कार्ड कुछ ऐसा होना चाहिए। A1 ग्रेड इन 2 सब्जेक्ट्स, मैंडेटरीली उस सब्जेक्ट्स में जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करने का सोच रहे हो, एंड A2 ग्रेड इन अदर 3 सब्जेक्ट्स। ICSE स्टूडेंट्स के केस में मिनिमम ओवरऑल परसेंटेज इज 90% और मोर like the rest two, जिसमें students should have scored 95% और above in 2 subjects, mandatorily उस subject में जिसमें वो specialization pursue कर रहे हों, and 85% और above in the rest of the 3 subjects. Apart from this, Oxford University accepts IELTS score only depending upon course to course. But अगर एक rough estimate देना हो तो the minimum IELTS score required for undergraduate courses is 7. Similarly, postgraduate courses के केस में भी IELTS रिक्वायरमेंट कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है, जो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सेक्शन वाइज स्टूडेंट्स के IELTS स्कोर कार्ड शुड लुक लाइक दिस। रीडिंग मिनिमम स्कोर ऑफ 6.5, राइटिंग मिनिमम स्कोर ऑफ 6.5, लिसनिंग मिनिमम स्कोर ऑफ 6.5, स्पीकिंग मिनिमम स्कोर ऑफ 6.5। ऑन द अदर हैंड, स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं शुड चेक आउट द मिनिमम GPA एंड GRE और GMAT requirements for their courses. Apart from this, you should have the following documents. Personal statement जिसका maximum word count is 4000 words. उससे ज्यादा exceed नहीं होना चाहिए। अपने 10th and 12th के academic transcripts, 2 letters of recommendations from your teachers, professors or academic mentors. That is very very important. English language proficiency scorecards basically आपके IELTS scorecard, GMAT और GRE score evaluation transcripts as per the course. एक impressive academic portfolio for a few courses like fine art और architecture. अगर आप वीडियो में डिस्कस किए हुए सारे पैरामीटर्स पर एक्सेल करते हो तो यू विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू राउंड। एंड अगर आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए
So you need to clear 2 interview rounds. पहला, academic और subject centric interviews. Very clear from the name itself. इस इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे टू टेस्ट कि आपको अपने अप्लाइड कोर्स के बारे में कितनी नॉलेज है, आप कितने वेल वर्स्ड हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड आपके इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ क्या है. अपार्ट फ्रॉम दिस, एकेडमिक इंटरव्यूज में आपके एसओपी एडमिशन से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने एसओपी में किसी पर्टिकुलर स्किल, टॉपिक या एरिया में इंटरेस्ट शो किया है, सो मे बी आपको उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दूसरा इंटरव्यू इज कॉल्ड जनरल इंटरव्यू और सेकंड इंटरव्यू, जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस और कॉग्निटिव एबिलिटीज को इवैल्यूएट किया जाता है. इस इंटरव्यू राउंड में आपको फिलोसॉफिकल या एथिकल पर्सपेक्टिव से किसी बर्निंग टॉपिक पर डिबेट करने को भी कहा जा सकता है टू एक्सेस योर थिंकिंग कैपेबिलिटी. अगर आप ये दोनों राउंड्स क्लियर करने में सक्सेसफुल रहते हैं, then you will be sent an email that you have been accepted to study at the Oxford University. I know, process थोड़ा सा लंबा है, but trust me, it's worth your time and energy. Now, at the end, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel to watch more videos like this. Bye bye.